Good evening, everybody. My name is Raj, and I'm connecting to you all from Gurgaon. And welcome to this special session today on health. जो फरूक का मिशन है, हर घर तंदुरुस्त, हर घर मेडिसिन फ्री. And we are very excited about today's session, because लास्ट में जब हमने ये बैच स्टार्ट किया था, हमने बहुत सारे सेशंस, जो नॉलेज सेशन है, हमने उसको शेयर किया था. And some of the things that we learned was what to eat, when to eat, how to eat, exercise, its relevance, और बहुत सारी टॉपिक्स पे हमने सेशंस देखे थे. बट आज का जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये वो सेशन है जो आपके साथ जिंदगी भर रहने वाला है. बहुत बार हमारे ये सवाल होते हैं कि हम ये सारा चीज तो देख लेते हैं, बट व्हाट इफ वी आई बाउंस बैक ऑन माय वेट, व्हाट इफ आई गो बैक टू द थिंग, to my original health status. So now the today's session is going to be on habits, building the right habits. And this is very, very exciting. And to kickstart this session, let me invite our mentor, जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को डिजाइन करके जो हम लोग के लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं. सो नॉट टेकिंग मच ऑफ द टाइम फ्रॉम द आवर मेन स्पीकर फारूक. Farooq doesn't need any introduction by now. He's an Olympian, he's an Arjuna Award winner. So over to Farooq. Thank you, Raj. And good evening, everyone, and welcome to this Friday session. This is one of our last sessions for this batch. But don't worry, we're going to keep continuing. And I hope that you all had an early dinner, finish your exercise. And I hope that some of you at least are following that exercise that I posted a few days ago. It's a very, very simple exercise. All these simple exercises are very easy to do, but easy things are also easy not to do. They are very simple in nature. Simple things are easy, but simple things are also easy not to do. And imagine that little exercise, doing it, 30 times will improve your blood circulation. And it takes less than a minute to do it about 30 times. So even if you were to take the outside, value and say takes a minute, imagine, I'm just saying do it 10 times in a day. So that's like 10 minutes in your day. Invest 10 minutes in your health. To just give a little background to that, your calf muscles and your shin muscles act like a pump. It's like your second heart over there. And that helps to bring the blood flow back from the legs, back to your heart. Imagine gravity is working one way, but the pump helps it to go the other way. And that is why the simple exercise has been designed, which causes, contraction in your shin and your calf muscles. And that helps the blood to go back, through your capillaries into your veins, back into your, everybody knows how the blood thing works in the body. We've all learned it in the 6th or 7th standard, but we've just forgotten about it. And circulation plays a huge role, because circulation is responsible for taking oxygen and nutrients to the various parts of the body. And that is done by the arteries, okay? And the capillaries bring this, and the veins bring this deoxygenated and, blood with waste back to your heart. All right. So like anything else, okay, if you do it like, 30 times one day, you will see no result. But if you do it 30 times, 10 times a day, and if you do it over a period of few weeks, you will be able to see, fantastic results, in the glow of your skin and, your general overall holistic health will start to improve. See, this whole program is designed to focus more on holistic health rather than just be focused on just one thing. And today, we're going to learn about habits. Habits are very important, because once you make a habit, right, like the simple thing, like this exercise that I'm talking about, you don't have to think about it, mere ko exercise karna hai, I have to exercise.
make it some kind of a routine, have fun with it. Like what I've been doing, before I put this exercise down, I've been doing this for the past 6 weeks. And because I found that this was so effective, I posted it over there. But what I've done is that I made a sort of like fun with it. Every time when I go to the washroom and I come out, I do the exercise. Okay, every time I have a meal, after the meal, I do that exercise. So I don't have to, take out some separate time or something like that. I just do it. And I found that, we've been advocating a lot about brisk walking, which is extremely important. But suppose, after lunch, you are sitting in the office and you can't do brisk walking. So this is a pretty good substitute, Just do it 10 times and you'll find that it probably gives you, pretty much the same effect. If you do this on a regular basis, I can assure you that it will not only improve your cardiovascular health, but it will also improve your sugar levels, it will improve your osteoporosis problems. Okay, it will improve your rheumatic problems, because everything basically comes down to blood circulation in the body. If your blood circulation is good and healthy, you will find that your holistic health will be, overall health will always be healthy. Your immunity and everything that you basically talk about is all related and connected to the kind of efficiency that you have in the blood circulation in your body. So today you're going to listen from Manoj. Okay, Manoj was somebody who had, reached a level where he thought that he had gone past any improvement. He had crossed the triple figure mark, he hit the century, and he was well above that century mark. And till he finally made a decision and he improved certain habits. And because he improved certain habits over a period of time, he was able to make an amazing transformation. I mean, if you just see his picture, okay, from what he was to what he is today, you will not believe what that man has achieved. So without wasting much of his time, listen to Manoj very carefully, because he has a lot to offer and help you to ensure that, you and your family have a good holistic health. Yeah. Thank you. Over to you, Manoj. Thank you, Farooq. Okay, so now today is about the building healthy habits. Just going ahead, if my screen is visible, just do this. Can you see this? Whether everybody can see this? What I did? Yes, Manoj. Yes, It yes. is Great. Now just check your left thumb is on top or right thumb is on top. For everyone, it will be different, not same. mine is आपको रात को 2 बजे भी उठा के ये कराया जाएगा ना, आपका वही अंगूठा सबसे ऊपर आएगा. कितने बजे भी आपको कराया जाए, कभी भी कराया जाए कि आपको ऐसा कराया जाए कि ऐसा करो, वही अंगूठा ऊपर आएगा जो अभी आया है. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज हैबिट. आपको पता भी नहीं चला आपके साथ क्या हो गया और आपके साथ हो गया. आप जब शर्ट पहनते हो, चेक करो कौन सा हाथ अंदर डालते हो, राइट और लेफ्ट. आप कुछ भी कर लो, हमेशा वही हाथ आपका अंदर जाएगा. और कोशिश करिएगा दूसरा हाथ अंदर डालने का. सपोज आपका नॉर्मली लेफ्ट हाथ अंदर जाता है, पहले चेंज करके राइट हाथ पहला डालिएगा आप. यू विल फील अनकंफर्टेबल, एंड दैट इज द पार्ट जिसको आपको कॉन्कर करना है, जिसे आपने जीतना है ना. बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब यह है कि हम लोगों के अंदर कुछ आदतें हैं, कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं. अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, आपकी बुरी आदतों की वजह से, और अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो आपकी अच्छी आदतों की वजह से. ये इसका पहला पार्ट है. दूसरा पार्ट है कि अगर बुरी आदत है तो उसको ठीक कैसे किया जाए. इसको आप यहाँ पर आते रहिए, आपको हम सिखाते रहेंगे. सो आगे जाने से पहले कि हेल्दी हैबिट को हैबिट में डालने से पहले पता तो होना चाहिए ना कि हेल्दी हैबिट होती क्या है. स्पेशली जब हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए हेल्दी हैबिट्स क्या है? सबसे पहले, क्या आप उतना पानी पी रहे हैं जितने आपको जरूरत है?
मतलब आपको सफिशिएंट पानी पीना है। ओके, क्या आपको अपने आप पता चल जाता है कि आपको पानी पीना है, कि आपकी बॉडी आपको बताती है कि आपको पानी चाहिए? अगर आपको आपकी बॉडी बता रही है कि आपको पानी पीना चाहिए, गलत। आपको खुद मालूम होना चाहिए कि मुझे अब पानी पीना है। यह आपका कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए। बॉडी कैसे आपको सिग्नल देती है? बॉडी आपको बोलती है कि आप प्यासे हो, तब आप पानी पियो। ओके, आपको मस्कुलर क्रैम्प आ सकते हैं, आपका मुंह सूखा आपको लग सकता है, आपको कंसंट्रेट करने में शायद तकलीफ हो रही होगी, या आपका यूरिन जो है येलो से लेके डार्क येलो तक, कोई भी कलर का, ऑरेंज कलर का भी हो सकता है। ओके, क्लियर नहीं रहेगा मतलब। तो ये आपकी बॉडी आपको बता रही है, लेकिन उस सिचुएशन पे मत जाइए। उस सिचुएशन पे जाने से नुकसान है। सबसे बेस्ट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना लीटर पानी पीना है, और उतना लीटर आप रेगुलर इंटरवल पे थोड़ा 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 करके पीते रहिए। सबसे अच्छा टाइम पानी पीने का क्या है? काफी टाइम है। आप जब सुबह उठो तब आप पानी पी सकते हो। फायदा क्या होगा कि आपके इंटरनल ऑर्गन सबके हाइड्रेट होंगे, आप हाइड्रेट हो जाओगे, और वो काम करना चालू हो जाएंगे अच्छी तरह से। आप जब वर्कआउट कर रहे हो उसके बाद, क्योंकि आपका हार्ट रेट जो ऊपर गया होता है वो थोड़ा नीचे आता है, ये पानी उसको नीचे लेके आ सकता है। खाना खाने से आधे घंटे पहले, खाना खाने के टाइम पे नहीं, खाना खाने के बाद नहीं, तुरंत खाना खाने से आधे घंटे पहले, ये आपके डाइजेशन में आपको मदद करेगा। आपको नहाने से पहले, अगर आपको नहाने से पहले अगर आप इसको पानी पीते हो, तो आपका ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रख सकता है, या नीचे लेके आ सकता है, ऊपर नहीं लेके जाएगा। जब आप सोने जा रहे हैं उससे पहले अगर आपने पानी पी लिया, तो क्योंकि आपको पता है कि रात को सोने के बाद बॉडी के अंदर रिपेयर का काम चालू हो जाता है, पानी की भी उसमें जरूरत पड़ती है। और अगर पानी आपके बॉडी में सफिशिएंट रहा, तो आपके बॉडी के रिपेयर एक्टिविटी के लिए आसान हो जाता है, हेल्प करता है। जब भी आपको बीमारी लगता है कि आप बीमार हो, उस वक्त आप अगर पानी पियोगे, तो आपके बॉडी के फंक्शन में वो, है ना, रुकावट जो आने वाली रहती है उसको नहीं आने देता। आप जब टायर्ड फील कर रहे हो, ये मेरे साथ बहुत होता है, व्हेन आई एम फीलिंग स्लीपी, या फिर जब मुझे थकान लगती है, मैं पानी पी लेता हूँ। तो ओके, ये वैसा सिग्नल नहीं है, लेकिन आप उसको पी सकते हो। ये आपके सिस्टम को रिचार्ज कर लेता है। जब आपके आजू बाजू में बीमार लोग हों, वायरल कुछ हो सकता है जिससे आपको इन्फेक्ट हो सकता है, आप पानी पीते रहिए। ये आपको इन्फेक्शन को सेटल नहीं होने देगा, फ्लश आउट करने में मदद करेगा। तो ये कुछ आदतें हैं जो आप डेवलप कर सकते हो पानी पीने के ऊपर से, है ना। पहला तो हो गया पानी। दूसरा चीज, पोर्शन साइज। ना, एक होता है सर्विंग साइज और एक होता है पोर्शन साइज। सर्विंग साइज छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। कई जगह पर हम जाते हैं, जब खाना का ऑर्डर देते हैं तो हम उसको पूछते हैं कितनी क्वांटिटी उसमें रहेगी, है ना। बड़ा भी हो सकता है। आजकल राजा थाली, महाराजा थाली, हर टाइप की थालियां मिलती हैं, उनका सर्विंग साइज बहुत ज्यादा है। बट सबसे बेस्ट ये है कि आपका खाने का पोर्शन साइज कितना होना चाहिए। अगर आपके खाने का पोर्शन साइज कंट्रोल में है, तो आपके बॉडी को रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन अच्छी तरह से बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। एक्सेस खाओगे तो शायद नहीं भी करे। ओके, तो कैसे आपको पता चलेगा? आप बोलोगे क्या मैं हमेशा क्या वजन लेके चलूं साथ में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका हाथ जो है, ऊपर वाले ने इस तरह से बना के दिया है कि आप उसको अपने हाथ से मेजर कर सकते हो, और वो हिसाब से आप खा सकते हो आपका पोर्शन साइज। जैसे कि अब यहाँ पर दिया है 4 चीज के ऊपर से: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और वेजिटेबल। इनके वेजिटेबल बेसिकली फाइबर एंड आपका विटामिन और मिनरल्स आपको बहुत देता है। प्रोटीन आपके हाथ का पाम साइज, लेने के टाइम पे ज्यादा, बन गया तो थोड़ा हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट अंजलि भर के, पहले थोड़ा होता है, बनने का ज्यादा हो जाता है। एग्जांपल चावल, अगर आपने थोड़ा चावल लिया है, बॉईल करोगे तो ज्यादा हो जाएगा। फैट आपके अंगूठे का ऊपर का हिस्सा, इतना सा पार्ट। वेजिटेबल आपकी मुट्ठी बनाइए, और जितना ये साइज आता है, ये साइज, है ना, इतना सा आप उतना खा सकते हो। ये पोर्शन साइज है। क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं कि सर्विंग साइज देख के हम ज्यादा खा लेते हैं, और ज्यादा खाने से एक्सेस कैलोरी चला जाता है। वैसे भी हम इंडियंस का जो प्लेट है वो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है,
वो वेजिटेबल से या तो फिर प्रोटीन से भरपूर नहीं है, तो हम जाने अनजाने फिर उसको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा लेते हैं, जो एक्सेस कैलोरी होता है बॉडी के अंदर जमा हो जाता है, और फिर उससे कई सारी प्रॉब्लम होती है, शुरुआत होती है वजन से। अगला, तीसरी हैबिट, क्या हम खाने को अच्छी तरह से चबा रहे हैं, है ना? बचपन से हम सुनते आ रहे होंगे, शायद ही यहाँ कोई ऐसा होगा जिसने नहीं सुना होगा कि हमें 32 बार चबाना चाहिए। एक एक निवाला अगर मुंह में डाला है तो उसे 32 टाइम्स हमने उसे चबाना चाहिए। इसके पीछे का भी कुछ साइंस होगा, कुछ ना कुछ, अगर कुछ लोगों ने बोला है, कुछ विजडम अगर हमारे पूर्वजों ने दिया है, तो उससे कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब आप स्लोली खाते हो तो आपका आधा डाइजेशन तो आपके मुंह पे ही हो गया है, पेट पे और हाथ पे वजन कम पड़ेगा, और सर इस तरह से आपका डाइजेशन अच्छे से होगा, जिस कैलोरी का कंजम्पशन कम होगा, उसके वजह से आपको लगेगा कि काफी पेट आपका काफी देर तक भरा हुआ लगेगा, जिसके वजह से आपको अनचाही भूख या क्रेविंग जिसको कह सकते हैं, एक्चुअली भूख नहीं है लेकिन फिर भी खाने की इच्छा जो होती है वो नहीं होगी, जिसके वजह से आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे, मतलब जबरदस्ती का ज्यादा नहीं खाओगे, और जिसके वजह से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम जो आने वाले हैं वो नहीं आएंगे। तो फूड को चबा के खाना ये बहुत जरूरी है, अच्छी तरह से चबा चबा के खाना। किस तरह से आप रेगुलर जिंदगी में अच्छी तरह से चबा के खाना की हैबिट को अंदर डाल सकते हो, उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तो ये है सबसे पहले कि आपने क्या खाना है ये आपको पहले से पता होना चाहिए, और उस तरह से आपके घर पे भोजन होने चाहिए ना। घर पे अगर आपके नमकीन रहेगा तो आप नमकीन खाने जाओगे, अगर आपके घर पे अभी दिवाली का सीजन आने वाला है, मिठाई भर के रखी होंगी तो आप सीधा मिठाई के ऊपर हाथ मारोगे। तो सबसे बेस्ट रहेगा कि घर आप प्लान करके रखिए कि आपको घर पे क्या रखना है। अगर आप हम अब हमारी हमारी बात करेंगे, हम हमारे घर पे ना बिस्किट रखते हैं ना नमकीन रखते हैं, और कोई अगर मेहमान आता है तो हम उनको पूछते हैं कि हम बिस्किट नमकीन घर पे नहीं रखते, इफ यू वांट मैं बाहर से ले आता, और जैसे वो बोलते 99% तो बोलते नहीं हम भी नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं है, देन वी पुट ड्राई फ्रूट्स इनके चाय के साथ। नाउ दिस इज व्हाट हमको मतलब पता होना चाहिए कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। कचरा चीज घर पे रखोगे आपके पेट में कचरा ही जाएगा, और जो गार्बेज इन गार्बेज आउट, आप कचरा ही बनोगे। ओके, आपका खाना जो भी आप खाते हो वो रिच इन फाइबर होना चाहिए। आप फ्रूट्स ज्यादा खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, आप बॉइल्ड या तो स्टीम्ड वेजिटेबल खा सकते हो। आप खड़े होके खाना मत खाइए, जब खड़े होके खाना खाओगे तो आप जल्दी जल्दी में खाना खाओगे ना, खड़े होके काम करना मतलब जल्दी जल्दी में काम करना उसका मतलब हो जाता है। आप बैठ के स्लोली खाइए। जब भी आप खा रहे हो तो एक निवाला मुंह में डालने के बाद अगर आप चम्मच से खा रहे हो तो चम्मच को छोड़ दीजिए। अगर आपने चम्मच से पकड़ के रखा है, ये इसको आप ट्राई करिएगा एक बार, आज ही रात को, या तो फिर अगर आपने खाना खा लिया रात को तो अभी नहीं, कल कल दोपहर को ट्राई करिएगा, आप खाना खाते रहें, ऐसा नाश्ता करेंगे टाइम पे, चम्मच आप खाने के बाद एक निवाला मुंह में डालने के बाद हाथ में रखते हो क्या प्लेट में छोड़ देते हो, और दोनों की स्पीड देखिएगा। अगर आपने हाथ में चम्मच रखा है तो आप ज्यादा खाओगे, और अगर आप ज्यादा, और अगर आपने चम्मच छोड़ के रखा है ना, एक बार एक निवाला खाया चम्मच छोड़ दिया, आपकी स्पीड खाने की कम हो जाएगी, एंड दैट इज व्हाट वी वांट, आपके लिए अच्छी आदत डालने के लिए, आपके शरीर के लिए। जब खाना खा रहा हो तो बात नहीं करिए। वैसे मुझे पता नहीं लगता कि खाना खाते वक्त बात कैसे कर सकता है कोई, क्योंकि हमारी जो सांस नली का और खाने की नली का जो जंक्शन है वो गड़बड़ कर जाएगा। नहीं करिएगा अगर कर रहे हो तो भी, और काम करते वक्त तो बिल्कुल नहीं करिए। 20 मिनट खाना खाने के लिए आपको निकालना है, शांति से निकालिए साइड में, आराम से खाना खाइए। मैंने भी अपने लाइफ में बना रखा है कि कुछ लोगों के सिवाय अगर मुझे खाते वक्त अगर किसी का फोन आता है मैं नहीं उठाता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 10 मिनट 15 मिनट के बाद मुझे रिकॉल करना पड़ेगा, दैट इज फाइन। आप भी सो कर सकते हो, कोई आपको पूछेगा नहीं आपने क्यों फोन नहीं किया, कभी नहीं पूछेगा। खाना खाते वक्त डिस्ट्रैक्शन मत रखिए साथ में, ये बहुत डिफिकल्ट है, खास करके आज की जिंदगी में, जब आपके आजू बाजू में लैपटॉप, मोबाइल, टीवी और फला और जाने पता नहीं क्या क्या चीजें आपके सामने हैं। बट डिस्ट्रैक्शन को दूर रखिए। क्यों, क्या होता है सब, बेसिकली सबसे सिंपल चीजें जो मुझे मालूम पड़ी है कि जब आप टीवी देखते खाते हो तो आपका ध्यान टीवी के ऊपर रहता है, आपको पता नहीं चलता कि आपने कितना ज्यादा खाया। ये सबसे बेसिक चीज है। इसके अलावा और क्या क्या होगा मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको हेल्दी रहना है, कैलोरी कम खानी है, हेल्दी रखना है बॉडी को,
तो सबसे पहला चीज है कि आपने ओवर ईटिंग नहीं करनी, और ओवर ईटिंग नहीं करने के लिए अगर आप इतना समझिए कि आपने ध्यान अगर आपने उधर डाल दिया टीवी के ऊपर या मोबाइल के ऊपर, तो आपका ध्यान खाने नहीं रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं। उसके अलावा क्या हम अपनी क्रेविंग को मैनेज कर सकते हैं? क्या आप कर सकते हो? ठीक है ना। क्रेविंग मतलब क्या? क्रेविंग मतलब ये, भूख नहीं लगी है लेकिन हमको ऐसा लगता है खाया जाए, है ना। ये भगवान ने जो हमारे हाथ दिए ना, ये एक ऐसी चीज है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहते, कुछ ना कुछ करते रहना चाहते। आप मानो या ना मानो, रिमोट आपके हाथ में रहेगा, बटन दबाते रहोगे, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। आप रिमोट छोड़ दोगे तो फिर कुछ और करेगा। ओके, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, बालों पे हाथ घुमाओगे, कुछ ना कुछ काम करते रहोगे उंगलियों से। और सबसे बेस्ट होता है जब कुछ नहीं रहता है काम उंगलियों के पास, तो सबसे आप अगर आप हाथ देखो किस तरह से बनाए, फोल्ड होकर सीधा मुंह की तरफ जाता है ना। तो फोल्ड होकर सर की तरफ नहीं जाता है, सर की तरफ हाथ करने के लिए हाथ उठाना पड़ता है। तो सबसे सिंपल है मुंह की तरफ डालने के लिए। तो हम जबरदस्ती खा लेते हैं। हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो सिग्नल भेजते हैं हमें क्रेविंग, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि पेट के अंदर एक घर्लिन करके हार्मोन बनता है, जो हमको ये बताता है कि हमें भूख लगी है या नहीं। ओके, हमारे ब्रेन के अंदर लेप्टिन नाम का एक हार्मोन बनता है, जो हमें बताता है खाना खाना चाहिए। हमारा एक इंसुलिन है, ओके, जो पैनक्रियाज बनाती है, लिवर के नीचे रहता है। इंसुलिन अगर जब ज्यादा होता है तो हमें बताता है खाना खाना है, क्योंकि इंसुलिन का काम है कि उसका जो खाना खाने से जो शुगर बनेगा उसको उसके जगह तक पहुंचा। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। तो आपकी बॉडी को, आपके हंगर को, आपकी क्रेविंग को ये चीजें कंट्रोल करती हैं। आपको पता होना चाहिए। और जब आपको पता रहेगा कि आपके साथ गलत क्या हो रहा है, तो आप कुछ सही करने की कोशिश करोगे। अगर आपको क्रेविंग अगर बंद करनी है तो आप क्या कर सकते हो? पानी पी लो, अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखो। तो क्या होता है कि जब आपकी बॉडी अगर बॉडी में अगर पानी नहीं है, तो पेट भी खाली है, तो आपको आपको लगेगा खाना खाना है, तो नहीं करना है आपको। तो बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, समय समय पानी पीते रहिए, जो कि मैं सबसे पहले पॉइंट में बताया था। बॉडी को मत बताने दीजिए कि आपको पानी पीना है, आपको पता होना चाहिए कि मेरे बॉडी को पानी देना है। ओके, अपने घर पे हेल्दी फूड रखिए, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया। आपके घर पे फ्रूट्स रखिए, वेजिटेबल्स रखिए, ताकि आप तुरंत स्टीम करके खा सकें। फाइबर वाला चीज रखिए, प्रोटीन रिच स्नैक्स रखिए। आप चने रख सकते हो, ओके, अंडे रख सकते हो, बॉइल्ड एग करके खा सकते हो। ओके, आपको प्रोटीन अगर आपने ज्यादा रखा तो प्रोटीन आपको सैटिस्फैक्शन देता है। सैटिस्फैक्शन का मतलब यह है कि आपके पेट को काफी देर तक फिल रखता है, आपको लगता है कि आपका अभी भूख नहीं लगी। और अपना रिड्यूस करिए स्ट्रेस। ये ना बहुत बेकार चीज है। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि नहीं किया पता नहीं, और कभी शायद आपने किया भी होगा लेकिन आपको पता नहीं होगा कि आपके साथ ये हो गया। मुझे पता है, एक दिन मैंने रात में टेंशन में, उस वक्त मैं किसी कंपनी में काम करता था, कंपनी वो जाम बनाती थी, जैम, है ना। 500 ml कांच की, 500 ग्राम की कांच की बोतल आती है। मैं एक बार में, एक बार मतलब एक वक्त में मैंने खोला उसको, रात को तकरीबन 1:30-2 बजे थे, और पूरा 500 ग्राम जैम खा गया था। आज सोचता हूँ तो डर लगता है। मेरा एक फ्रेंड है जो स्ट्रेस में घर के अंदर बटर खा जाता है। अगर आधा किलो बटर का ब्लॉक पड़ा होगा, वो आधा किलो खा जाएगा। ओके ना, ये स्ट्रेस का साइड इफेक्ट है। आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कर दिया आपके साथ, लेकिन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि ऐसा हो सकता है और ये गलत है, आप उसके लिए सही रास्ता ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट, आप अपने सांसों को काबू में रखिए, है ना। ब्रीदिंग की टेक्निक को थोड़ा सीखिए। 20 से 30 मिनट अगर आपने ब्रीदिंग टेक्निक सीख के, अलग अलग ब्रीदिंग टेक्निक के अलग अलग फायदे हैं, अगर आपने सीख लिया, तो आपको जो चाहिए वो आप कर सकते हो, और आप उसका फायदा ले सकते हो। कैसी कैसी टेक्निक है, मैं कुछ नाम नाम देख रहा था। डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, जिसमें आप उसको पेट तक ले जाते हो, सांस पेट के ऊपर तक, लंग्स के नीचे तक, ओके, और वहां से स्पीड से फिर बाहर निकालते हैं। नेजल ब्रीदिंग, नाक से ब्रीथ करने के अलग अलग टेक्निक है, मैं ये अगला स्लाइड में आपको बताऊंगा। कपालभाति ब्रीदिंग है, माउथ ब्रीदिंग है जहाँ पर आप मुंह से लेते हो, ब्लो ब्रीदिंग है जहाँ पर आप मुंह से
फेंकते हो प्रेशर और सांस को, जब आप एक्सेल करते हो उसको, तो अलग अलग टाइप की ब्रीदिंग है। आपको देखिए, आज का जो चैप्टर है ये एक हेल्दी हैबिट को एक कंपाइल किया गया है ना, तो आपको सिर्फ ये समझना है कि ये सारी हेल्दी हैबिट्स हैं। उसके बाद डिटेल्स में हम अलग अलग जो हमारे प्रेजेंटेशन होते हैं उसमें बताते रहते हैं। तो आज बेसिकली कंपाइलेशन है जितना पूरा हमने अभी तक सीखा है उसका। प्राणायाम आप कर सकते हो, और प्राणायाम के बाजू में एक चार्ट बना हुआ है और उस चार्ट के बेनिफिट लिखे हुए हैं किस लिए आपको वो करना है कि नहीं। उसमें आपको दिखाया गया कि कितने सेकंड आपको इनहेल करना है, कितने सेकंड होल्ड करना है, कितने सेकंड एक्सेल करना है, मतलब सांस निकालनी है, कितने सेकंड में पूरी सांस बाहर निकालनी है, और सांस निकालने में कितनी देर आपको रुकना है। ओके, जैसे अगर पहला है 6060, इसका मतलब आप 6 सेकंड तक सांस लोगे पूरा अंदर, और जैसे ही 6 सेकंड पूरा तुरंत आप निकालना चालू करोगे अगले 6 सेकंड, और फिर तुरंत लेना चालू करोगे। इसका मतलब है होल्ड नहीं करना, निकालना लेना। तो इसी तरह से चार्ट है, इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, आपको अगर कुछ इसमें अगर फायदा मिले, क्योंकि एनर्जाइजिंग के लिए है, कुछ आपको काम करने के लिए है, कुछ आपको बैलेंस करने के लिए है, कुछ एक्सरसाइज सांस के जो है, आप इसको कर सकते हो। अगला पॉइंट, हेल्दी हैबिट। क्या आप अच्छी तरह से सो रहे हो? क्या आपको पूरी उतनी नींद आपके शरीर को जो चाहिए क्या पूरी मिल रही है? नींद कम से कम 6 घंटे से लेके 8 घंटा, ये एक नॉर्मल रेंज है। अगर आपकी नींद 6 घंटे से कम हो रही है तो समझ जाइए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ बारूद जमा हो रहा है, और एक दिन फट के उड़ के आपके सामने आ जाएगा। ओके, अच्छे कंसंट्रेशन के लिए नींद की जरूरत है। अगर आपकी नींद अच्छी हुई होगी तो आप अच्छे से सोच सकते हो, समझ सकते हो, देख सकते हो, आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं रहेगा, आप अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी, है ना। सब ब्रेन से रिलेटेड है अगर आप ध्यान से देखोगे तो, लेकिन ये ब्रेन के साथ साथ में स्टमक से भी रिलेटेड है। ओके, क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड है तो आपकी क्रिएटिविटी भी अच्छी हो जाएगी, है ना, आपके डिसीजन अच्छे होंगे। देखो सारे 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 ब्रेन से रिलेटेड है। नेगेटिव चीज के ऊपर आप कम ध्यान देंगे, क्यों मालूम है? क्योंकि अगर आप फ्रेश हैं और कुछ तकलीफ साथ में है तो आप सोचोगे सब कुछ रास्ता निकाला जाए। लेकिन अगर आप वैसे ही नींद में हो, परेशान हो, और एक तकलीफ आई, आप बोलोगे यार ये क्या हो गया, एक और प्रॉब्लम सामने आ गई। आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है हेल्दी स्लीप। इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो? आप नींद आने के लिए आप बाहर लो, नहा लो। मुझे ही पसंद है रात को अगर समझो मुझे नींद नहीं आ रही मैं तुरंत नहा लेता हूँ। ओके, ढीले कपड़े पहनिए। बचपन से स्कूल में भी सिखाया होगा आपको, सोने के टाइम पे ढीले कपड़े पहन के सोना चाहिए। बालों को कोम्ब करिए, शायद आपको एक मसाज का फीलिंग देगा आपके सर को। ओके, अगेन ब्रेन को। अगर आपको लगता है ब्रश भी करिए, यू विल फील लिटिल माउथ फ्रेश लगेगा, और शायद आपको अच्छी नींद आएगी सोने के टाइम पे। किताब पढ़िए, ये मेरे साथ होता है, अगर मैं पढ़ने बैठ जाऊं तो नींद तुरंत आ जाती है। ओके, आपके साथ भी होगा। अगर आप टीवी देखते रहोगे, मोबाइल देखते रहोगे, नींद नहीं आएगी, 1:30 2 3 बज जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। बिकॉज अगर आपने सर्काडियम रिदम और बॉडी क्लॉक ये सब चीज अगर आपने पढ़ी होगी, सिग्नलिंग सिस्टम पढ़ा होगा, लाइट के साथ हमारे ब्रेन का कैसा है और ब्रेन का ऑर्गन के साथ कैसा है, ये अगर आपने सुना होगा हमारे प्रेजेंटेशन में, तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को छोड़कर अगर आपने बुक के ऊपर ध्यान दे दिया, नींद अच्छी आएगी। और नहीं भी आ रही है ना, आप लाइट वाइट बंद करके बिस्तर पे चले जाओ, थोड़ी देर में नींद आ ही जाएगी। ओके, रात को खाने के टाइम में, रात को सोने से पहले ज्यादा हैवी खाओ मत, ये भी ध्यान रखिएगा। और क्या कर सकते हो आप? अगली हैबिट, आप किस तरह की सोच रखते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव? अगर आप नेगेटिव सोच रखते हैं, ये आपको एडवर्सली इफेक्ट करेगा, मतलब आपके बॉडी को ये गलत तरीके से इफेक्ट करेगा। कैसे? एक चार्ट यहाँ बना हुआ, आप देखिए ना, सर्कल कैसा है, ये घूम फिर के आपके ना अपने थॉट्स को और बिगाड़ते जाओगे, क्योंकि आपकी जैसी सोच होगी, सपोज नेगेटिव सोच है, उससे आपका बिलीफ होगा वैसा, जैसा आपका सोच वैसा बिलीफ, और जैसा बिलीफ होगा वैसे आपकी फीलिंग आने लगेंगी, और जैसी फीलिंग होगी वैसे आप काम करोगे, और जैसा काम करोगे वैसे आपके थॉट्स आएंगे। इसका मतलब ये कि अगर आपके थॉट्स नेगेटिव हैं तो आपके बिलीफ लेवल नीचे चला जाएगा। जब आपका बिलीफ लेवल नीचे चला जाएगा, आपकी फीलिंग्स एकदम बेकार हो जाएंगी, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, और जब आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, आप जो काम करोगे सब गलत काम करते जाओगे, और जब गलत काम करते जाओगे फिर आपके थॉट्स नेगेटिव होते जाएंगे, अरे ये तो सब गड़बड़ हो रहा है मेरे से।
तो आप नेगेटिव थॉट से दूर रहिए, आप पॉजिटिव थॉट को देखिए ना, आप किस तरह से कर सकते हैं। मेरा सबसे सिंपल तरीका है, मैं हमेशा ये देखता हूँ, सोचता हूँ कि आपको चाहिए क्या, ये सोचिए, है ना। आपके साथ जो हो गया वो तो हो गया, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब आपको चाहिए क्या, जो आपको चाहिए वो पाने के लिए आपको क्या करना है वो करना चालू करें। सबसे सिंपल है, आपको चाहिए क्या सोचो, आपके साथ हो गया गड़बड़, होने दो, क्या कर सकते हैं आप। मैं तो बोलता हूँ लोगों को, जो मेरे साथ वाले होते हैं, जब वो टेंशन में रहते हैं और बैठे रहते हैं सर पकड़ के, मैं बोलता हूँ अगर सर पकड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, मैं भी तुम्हारे साथ सर पकड़ता हूँ, दोनों मिलकर साथ में सर पकड़ेंगे अपना अपना, जल्दी से सोल्यूशन आएगा, लेकिन नहीं आता। जस्ट थिंक उल्टा देखिए आप कि आपको चाहिए क्या वो सोचिए और वो हिसाब से काम करिए। जो हो गया उसके ऊपर ज्यादा मत सोचिए, सोल्यूशन के ऊपर ज्यादा सोचोगे, एक ना एक आपको रास्ता दिखेगा और तुरंत आप पॉजिटिव नोट में आ जाओगे। ये एक तरीका है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसी से एक्सपर्ट हो जाओगे, बिल्कुल नहीं, लेकिन बोलने का मतलब सिर्फ ये है कि नेगेटिव थॉट से आप पॉजिटिव थॉट की तरफ आइए, और जब पॉजिटिव थॉट की तरफ आओगे तो किस तरह से आपके बॉडी को इफेक्ट करेगा, ये आपको हमने पिछले स्लाइड में दिखा दिया। अगली चीजें क्या है, अगली चीज ये है कि आपको आपके आजू अगल बगल का, है ना, सोशल बातें किस तरह से ट्रिगर करती, क्या आप उनसे दूर हट सकते हो, वो आपके बॉडी के ऊपर कितना इफेक्ट करती है, आपके सोच के ऊपर कितना इफेक्ट करती है। जब आप खाना खा रहे हो या फिर जब आप टीवी और पिक्चर देख रहे हो, तब आप क्या कर रहे हो। कई लोग देखते हैं, पिक्चर देखते रहते हैं, खाते रहते हैं, ये क्या कर रहा है आपके साथ। आप सोशली बैठे हो, इंजॉय करिए, खाना जरूरी नहीं है। कभी हम किधर खाने में जाते हैं, है ना, खाने में नहीं, किसी अच्छे होटल में रुके हैं और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट है ना, बहुत अच्छा स्प्रेड, ये मेरे साथ प्रॉब्लम, बट आई फाउंड द सोल्यूशन फॉर, इतना बड़ा स्प्रेड रहता है कि ऐसा लगता है मैं ये भी खाऊं, ये भी खाऊं, ये भी खाऊं, ये भी खाऊं। अगर आपका स्वीट टूथ है तो आप तो गए, है ना। तो करना क्या है, अगर आप खा, पहले तो आपको कंट्रोल होना चाहिए कि मुझे क्या खाना है, कैसे खाना है, और उसको सीक्वेंस से आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले मैं क्या खाऊं, उसके बाद क्या खाऊं, उसके बाद क्या खाऊं। और अगर खा भी लिया ज्यादा, मैंने जो उसका तोड़ निकाला है कि जिस दिन मैं ब्रेकफास्ट अगर ज्यादा कर लेता हूँ हैवी, आई मेक अ पॉइंट कि मैं कम से कम 10 से 15 किलोमीटर चलूं, बिकॉज आई नो कि मैंने कम से कम 1000 से 1200 कैलोरी अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में डाली। दैट इज व्हाट यू शुड नो। और ये सारी चीजें जो हम, ये जो हर हफ्ते 2 बार मिलते हैं, ये किस लिए है, यही तो जानकारी देने के लिए, क्योंकि हम भी आखिर इंसान है, कुछ ना कुछ गलती कर ही लेंगे, लेकिन गलती करने के बाद अगर हमें पता है कि इसका सोल्यूशन क्या है, हम वो पता लगा सकते हैं और हम कर सकते हैं। तो आप हेल्दी स्नैक्स को हाथ में रखिए, खाने के टाइम को स्टिक करिए, जैसा कि अभी फरूक जी ने शुरुआत में ही कहा था कि होप सब खाना खा के बैठे हैं। सिंपल, बिकॉज यहाँ पर जो ज्यादा करके लोग हैं जो इस प्रोग्राम को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, दे मेक अ पॉइंट कि जैसे ही सूर्यास्त हो, सनसेट हो, 6:30 से 7 के बीच खाना खा लिया जाए। अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, है ना, ये सोशल ट्रिगर्स जिसको बता रहा हूँ कि आप घर से बाहर चले गए, और जैसे अभी हम अभी बैंकॉक में थे, तो मुझे बहुत तकलीफ थी उधर। एक तो मैं वेजिटेरियन, वहाँ पर नॉन वेज ही नॉन वेज मिल रहा, और जो वेज मिल भी रहा तो उसके अंदर या तो अंडा, सॉरी, अगर कोई जो वेज मिल भी रहा तो खाली स्वीट ही था मुझे वहाँ पर। ओके, हम यहाँ से प्लान करके ले गए कि मुझे क्या क्या चीज यहाँ से साथ में ले जाना है, कब कब उधर खाना है, कितना कितना खाना है। तो 6-7 दिन का सामान मैं साथ में लेके चला गया और उस तरह से मैं खा रहा था। प्री इवेंट ईटिंग, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप कहीं जा रहे हो किसी इवेंट पे खाने के लिए, या तो आप उसके पहले ऐसी कोई चीज खा लो जो आपके स्टमक को आधे से ज्यादा भर दे, या फिर इवेंट में जाने से पहले मत खाओ अगर आपको लगता है उधर आपने बहुत ज्यादा खाना है तो। मैं क्या करता हूँ, सपोज मैं किसी रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ ना, लोगों को, कई लोगों को हंसी भी आएगी, मैं रेस्टोरेंट में जाने से पहले अपने साथ कार में 1 या 2 कुकुम्बर रख देता हूँ, काकड़ी, और अंदर घुसने से पहले फिर आई भी मैं अंदर ज्यादा कचरा नहीं खाऊं, क्योंकि मेरा आधा पेट उसी से भर गया। ओके, माइंडफुल ईटिंग,
अगर आप ये पूरे प्रेजेंटेशन में से अगर कुछ भी दिमाग में कुछ भी याद करके नहीं लेके गए ना, आप ये सबको याद लेके जाओ, याद करके ले जाओ, माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल का मतलब क्या? माइंडफुल किसी भी चीज के साथ लगा लो। आप माइंडफुल वॉकिंग कर लो, माइंडफुल ड्रिंकिंग कर लो, माइंडफुल ईटिंग कर लो। तो माइंडफुल सोच के, हर चीज को सोच के काम कर दो, सोच के खाइए ना। सोच के खाने में शुरुआत होती है खरीदने से, कि आपको क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, घर पे कितना रखना है, कैसा रखना है, कैसे काटना है, कैसे धोना है, कैसे पकाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है। ये माइंडफुल याद रखेगा कि हर चीज के ऊपर सोच के काम कर। पॉटलक गैदरिंग कर सकते हो आप लोग। पॉटलक गैदरिंग बेसिकली, अगर लोगों को नहीं पता है तो मैंने भी आज इसका पता लगा। इसका मतलब ये है कि 6-7 फ्रेंड या फिर 8-10 भी हो सकता है, मिलके एक एक डिश बना के लेके आ जाए अपने अपने घर से, और फिर हम उसका एज अ पार्टी करें, है ना। अगर हेल्दी खाना बना के सब लेके आ जाते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगली हैबिट क्या हो सकती है? आर यू मूविंग इनफ? क्या आप हिल रहे हो ना? हिलने का मतलब ये है चलना या एक्सरसाइज करना। अनलिमिटेड फायदे, आप एक नुकसान नहीं गिना सकते इसमें सिर्फ फायदा ही फायदा आपको मिलेगा। आपको, आप कहीं से भी ले लो, अगर आपको चलने की इच्छा नहीं हो रही ना, आप सिर्फ, हमें जो सिखाया गया है कि आप खाली शूज पहन जाओ बस घर, सिर्फ शूज पहन लो, देखो आपकी चलने की इच्छा हो जाएगी। एंड ट्राई दिस। मैंने ये ट्राई किया और मुझे उसी से फिर मोटिवेशन मिला कि हाँ मैं तो वॉक कर सकता हूँ। पहले मैं वॉक नहीं करता था, पहले मुझे अगर आधा किलोमीटर भी जाना होता था मैं बाइक लेके जाता था। अब क्या करता हूँ, बहुत सारी अलग अलग चीजें, जैसे कि सीढ़ियां चल सकते हो आप रादर देन लिफ्ट। घर पे बैठे बैठे अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट करना चाह रहे हो, उससे अच्छा आप किसी दोस्त के साथ मिलने चले जाओ, दोस्त के साथ मिलने चले जाओ। ओके, ऑफिस में हो, आपको ब्रेक मिला है, उस पर आप थोड़ा चल लो। मैं किसी स्टोर में जाता हूँ समझो परचेस करने के लिए, और सामने अगर दुकानदार बिजी है, मैं ये खड़ा नहीं रहता, मैं स्टोर में घूमते रहता हूँ, घूमते रहता हूँ। ओके, आप अगर ऑफिस जा रहे हो, जितना हो सके उतने चलने की कोशिश करिए। ओके, आप अगर किसी को, ऑफिस में अगर किसी को कुछ बात बोलनी है, और अगर आप इनफॉर्मली बोल सकते हो, तो रादर देन राइटिंग अ मेल, आप वहां जाके उससे चल के जाके उसके बात करके बात कर सकते हो। अगर आपको समझो ऑफिस जाना है और आप बस में या ट्रेन में हो, ट्रेन तो चलो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन अगर आप बस में हो, आप 1 या 2 बस स्टॉप पहले उतर सकते हो, ताकि आधा 1 किलोमीटर आप चल लो। अगर आप गाड़ी पार्क कर रहे हो, ये मेरा फेवरेट, मुझे अगर कहीं जाना होता है, गाड़ी पार्क करनी होती है, मैं तकरीबन 1 किलोमीटर दूर से देखने लग जाता हूँ कि कहाँ पार्किंग मिल जाए, वहां रख दूंगा पहले, क्योंकि जहाँ जाना होता है वैसे तो वहाँ पार्किंग मिलती नहीं, जब तो डबल फायदा हो जाता है उसमें। ओके, सो दीज आर दी सम थिंग्स जिससे आप अपने बॉडी को हलचल रख सकते हो बॉडी में, और उसके आपको एंडलेस बेनिफिट मिलेंगे। अगली हैबिट आप क्या डेवलप कर सकते हो? आप अपने दिमाग में किस तरह के इमोशंस भर रहे हो? क्या वो नेगेटिव इमोशंस है, रॉन्ग इमोशंस है, डिप्रेस करने वाले इमोशंस है, कि आपको लिफ्ट करने वाले इमोशंस, या पॉजिटिव इमोशंस? इससे आपके, जैसे कि हमने पढ़ा कि अगर आप डिप्रेशन में रहोगे तो आप सब ओवर ईटिंग कर सकते हो, और जब आप ऐसा ओवर ईटिंग करोगे तो क्या करोगे ज्यादा करके? आप मीठा खाओगे, कोई कार्ब वाले आइटम खाओगे, जिससे फिर आपको रिग्रेट होगा, यार मैंने कोई गलत खा लिया, और फिर वापस वही विशेष सर्कल में आप फंस जाओगे, है ना। तो आप क्या कर सकते हो इसके लिए? आप अपने इमोशनल ट्रिगर्स जो पॉइंट्स हैं उसको आप पहचानिए, कि किस वजह से आप ओवर ईटिंग कर लेते हो, या कि आपको डिप्रेशन में जाते हो, या आपको खराब लगता है, या आपको दुख होता है किन चीजों से। ओके, और उसको दूर करने के लिए कुछ हेल्दियर मैकेनिज्म होगा। हेल्दियर मैकेनिज्म क्या हो सकता है? कि आप किसी दोस्त से मिलने चले गए, अच्छे फ्रेंड्स, किसी अच्छे फ्रेंड से आपने बात करनी चालू कर दी, कोई आपका मेंटर होगा, आप उससे फोन पे बात करना चालू करो। आप रेस्ट कर लो, सीधा सो जाइए, ये भी एक हो सकता है। या वॉक पे निकल जाओ, तो शॉपिंग करने निकल जाओ, अगर आपको कुछ खरीदना है, जबरदस्त से नहीं जाइएगा, है ना, कुछ खरीदना है तो। और सबसे बेस्ट, अगर कुछ खाने की इच्छा हो भी रही है तो माइंडफुल ईटिंग करिएगा। ये सारी हैबिट तो अच्छी हो गई,
लेकिन जब तक आप अपने लिए ये गोल फिक्स नहीं करोगे कि मुझे कहाँ जाना है, तब तक आपके साथ कुछ नहीं होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ जाना है, आज मेरी हेल्थ है, मुझे कैसी हेल्थ चाहिए। अगर आप जब तक वो सेट नहीं करोगे, मुझे अपना हेल्थ अच्छा चाहिए, जब तक मैंने सेट नहीं किया था कि मुझे अपना वजन कम करना है, तब तक मैं कुछ नहीं कर रहा था, तब तक चले जा रहा था। 114 पे था, डॉक्टर ने बोला बैरेट्रिक सर्जरी करते हैं, मैंने बोला चलो करते हैं। उसने बोला अभी नहीं करेंगे, 140 में करेंगे। इमेजिन करिए, आउटर दुनिया ऐसी है, मेडिकल इंडस्ट्री ऐसी है। 114 पे मुझे बोला गया कि नहीं 140 में करेंगे। इनडायरेक्टली ही वाज सेइंग अब बिंदास वजन बढ़ाओ, हमारा बिल बढ़ते रहेगा, हम मजे करेंगे। दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग एट। और यहाँ पर हम बता रहे हैं कि नहीं, अपनी बॉडी को सुधारिए, हेल्थ को सुधारिए, अपने जिंदगी के सालों को मत बढ़ाइए, उन सालों में हेल्दी रह के उन सालों को बढ़ाइए, ताकि आप लाइफ को अच्छी तरह से इंजॉय कर सको। गोल कैसे होने चाहिए? एक रियल गोल होना चाहिए जो आप अचीव कर पाओ, है ना। एक आपको रोल मॉडल होना चाहिए कि जो आपको गाइड कर सके, जो आपको, जिसको आप देख के इंस्पायर होते रहो। और हमारे ग्रुप में मैं आपको ईमानदारी से, फरूक तारापुर से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। आप जिन लोगों को जानते हैं उसमें से सोचिएगा, ये मेरा चैलेंज है सबको, क्या फरूक तारापुर से के अलावा कोई रोल मॉडल हो सकता है जो 65 की एज में 60 फीट हाइट की, आई एम राइट, आई एम थिंकिंग, फरूक करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग, जो रस्सी होती है उस रस्सी पे चढ़ जाता है इंसान, सीधी रस्सी पे। इमेजिन करिए, जिनका कैलेंडर एज 65 है, बॉडी एज इज लेस देन 35। क्या इनसे अच्छा रोल मॉडल कोई हो सकता है जो आपको हर वक्त सपोर्ट करने को तैयार है, अगर आप अपने आप को सपोर्ट करने को तैयार हो तो। ओके। और आपके जो फिर गोल्स हैं, आप नहीं कर पाओगे तो फरूक आपको हमारे थ्रू या हमारे थ्रू आपको स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करके देंगे, ताकि आपको छोटा छोटा जो गोल है वो अचीव करने में आसानी हो। जैसे मेरे लिए था, मेरे लिए 1 साल का गोल था, लेकिन मुझे महीना महीना करके बताएगी कि हर महीना 2.5-3 किलो, हर महीना 2.5-3 किलो, हर महीना 2.5-3 किलो। इमेजिन करो ना, 1 साल के अंदर 36 से 40 किलो। एंड दैट इज व्हाट आई डिड, जस्ट बिकॉज कि वो 3-3 किलो, 40 किलो एक साथ बोला जाए तो कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि कोई इंसान 40 किलो वजन कम कर सकता है। 45, सॉरी 45 कम किया, कोई नहीं बिलीव करेगा। एट द एज ऑफ 52 अगेन, 52 साल की एज में जो आदमी जिंदगी में कभी चला नहीं, 120 किलो का, इमेजिन करिए। लेकिन ये सब चीजें हैं जो लोग को ज्यादा अच्छे पता है, उन्होंने हम लोगों को सिखाया हुआ है, और अभी भी वो बाकी लोगों को भी मदद करने को तैयार है। और जब आप छोटे छोटे चीजें अचीव करते हो तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, सिखाया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए इन चीजों का, सपोर्ट लीजिए। आपको तकलीफ होगी, कहीं ना कहीं गाड़ी अटकेगी, एक टीम है जो आपको सपोर्ट करेगी, और हमेशा पॉजिटिव और मोटिवेटेड रहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, आप जब तक आप नहीं सोचोगे आपका काम सही से हो सकता है, तब तक कुछ नहीं कर सकते आप। और फिर अपने आप के गोल को चेक करिए, 24 दिन रोज का चेक करिए, आपने रोज का काम कर लिया कि नहीं कर लिया, 10,000 स्टेप चल लिया कि नहीं चल लिया, 4 किलोमीटर चल लिया कि नहीं चल लिया आपने, है ना। उस तरह से फिर वीकली चेक करिए कि वीक में आपने कितना कैलोरी या कितना ग्राम या कितना फैट कम कर लिया, और फिर मंथली चेक करिए। इस तरह छोटा, जैसा फरूक जी ने बताया अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने सेंटेंस बोला था कि अगर आप एक ही दिन 30 रिपीट्स करोगे उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने 10 रिपीट अगर 30 दिन कंटिन्यू कर दिया तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। ओके, सो आपके लिए कुछ एक चार्ट है, मैं फटाफट पढ़ लेता हूँ। आपने क्या करना है, 0 प्रोसेस फूड खाना है, 1 घंटे की रोज एक्सरसाइज करनी है, कम से कम 2 लीटर पानी पीना है, कम से कम 3 कप ग्रीन टी या तो ग्रीन जूस पीना है, कम से कम 4 बार मेंटल ब्रेक लेना है, कम से कम 5 बार या 5 चीजों के लिए ऊपर वाले को धन्यवाद
कहना है। सुबह 6 बजे मेडिटेशन करना है, 7 मिनट जोर से हंसना है, जोर से मतलब स्माइल नहीं कर रहे हैं, हंसिएगा, लाफ। 8 घंटे की नींद लेनी है, 9 बजे बिस्तर में जाना है और 10,000 स्टेप डेली के करने हैं। अगर आप ये कर लेते हो, you will see the changes in your body as a good health. So what you have to do, you will have to shine. आपको शाइन करना पड़ेगा। आप रोज सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड करिए, अपना न्यूट्रिशन लीजिए, अपना इंटेंशन और गोल क्लियर रखिए। कुछ नई चीज सीखिए, एक दिन से, एक महीने से नहीं होगा। एक्सरसाइज डेली करिए। थैंक यू वेरी मच राज। Thank you very much, Manoj, for that valuable insight and letting us know about the good habits. And you know what I loved about this thing, कि मैंने आपको पहले से भी जाना है, मैं पहले भी आपको जानता था, और अब जब मैं आपको मिलता हूँ, I see you practicing this day in day out. So I could see that ये जो information आप दे रहे थे, ये किस conviction से आपके अंदर से निकल के आ रहा था. So that's the great part about you, Manoj, and building the right habits. So we have Commander Vijay has raised his hand. Yes, sir. Sir, you are on mute, so you need to unmute yourself. Okay, can you hear me now? Yeah, absolutely, sir. Yeah, good evening. I have, I'm told, especially in when you're going for a party or a get together, where normally you have to drink, then you have starter, then you have dinner, it goes on to 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock. So I was told that if you really don't, you have to drink, but you don't want to drink, then have 2-3 glasses of water before going. Okay, then you will not feel like that much drinking, as otherwise you would do that. Number one. So similarly for food plate. Now, when you go there, of course, self-control is the one which needs to be exercised, but very difficult. So, like having water before having a drink, cocktail, what would you recommend to have so that you have a mindful eating or whatever you eat, balance or something? First of all, as far as drinking is concerned, I think it is a matter of choice. You can go to a party and drink water, or you can drink your poison. So that's a choice that you have got to make. I mean, it doesn't necessarily mean that you are in a party means you have to drink. Now, I've survived for so many years without drinking, and I'm quite all right with that. Second thing, as far as you're superhuman. We are not superhuman. Second thing is that as far as food is concerned, I think the easiest thing is that once you come up onto all these sections and you realize that what food is good for your gut health, you got to think that whether this food that you're putting on your plate is going to increase your good bacteria or is it going to increase your bad bacteria. And if the answer is that it is going to increase your bad bacteria, then you need to, not have it. What I find in other countries like in Europe and all, especially people with, good healthy habits, they even if they have a late night party or something, they have their dinner and then they go. So, the whole mindset is different over there. Parties to have fun, socialize, meet, talk, have fun, probably play some games over there. Party is not necessarily meaning eat. In India, what I'm noticing is that dinner at the parties start after midnight. And that is really, bad. There is no good food that you can eat past midnight, okay, which will compensate for eating, past midnight. So that is a really unhealthy habit and should be really avoided. And if you have to do it, just as I recommend, have your dinner and then go to the party, and then just for this thing, for the formalities, you can pick up a plate and pick it up. Done. Far out.
because when you go for a party or say someone's house for the same, you start with a drink, then you have starters, then you have dinner. So So the drink, if you have had your dinner and if you're over there, the drink will hurt you even lesser, for sure. If you're drinking after you had food, okay, the drink is going to hurt you less. What I find most ridiculous over here is that people have the drink and then with it, they are eating small eats. And the small eats are also, most of it is processed. Okay, and that's like really hurting. And sometimes it's a toss up between the damage really being done by the drink, or is it being done by the food. There is enough evidence that shows that drinking in moderation, has its good habits. I mean, good effects also, right? But that is really in moderation, and there are enough research papers which show that any form of drink is bad. So these are all health choices. If you find that you're, having a party every day, if you are drinking, every day you're going late, your good bacteria is going to go for a toss, your bad bacteria will keep increasing. And let me tell you one thing, sir, that the worst thing about all this is that when the good bacteria is reducing and the bad bacteria is going up, you don't even realize it. You won't die tomorrow if your bad bacteria is at 85% and good bacteria is at 15%. But it will hurt you. It will create lifestyle diseases, and it will, create a probability of a bad holistic health, which will lead to a lot of other problems. So you need to be aware that, okay, these are my good habits, these are my bad habits, these are the choices that I have, and make good choices for your own health rather than just go with the flow. It's very easy in a party to go with the flow. And I've noticed when you are in a party, people will force you, ek aur kulfi kha lo. That kulfi is really hurting now. As it is, you have had the dinner after midnight. After that, you have your kulfi. Okay. And the size of the kulfi also, sometimes it's quite big. And then there's a second helping to it. So these are all choices that one has to make. First one is to know what is going to hurt you, what is not going to hurt you. And second is, after knowing, have some self-control and some discipline to not make the bad. Moreover, outside food, whether you have in a restaurant or in a party or in a mess or club, it's full of oil, full of those things. It's horrible. It's horrible. You are paying more, and you are getting really bad stuff for your But somehow today the social social thought process is such that, if you have not gone to a party and all, then you're not living it up, you're not enjoying yourself. But I think that mindset shift can only come if you're you stay in a community and repeatedly. I believe that repetition is the mother of all teaching. If repeatedly you are being told, kuch na kuch to bheje mein jayega. Like I have seen you change. Like you have sometimes now avoiding eating your caramel custard. That day you were at the airport and you were telling me, I'm not sitting down, I'm taking a walk. So how did this happen? Because you're in the community keeps on reminding you what is right. And it does, like we always tell people, don't worry if you're doing anything wrong. Okay, but even if you're doing something wrong, do less wrong. And if once you realize what's right, do more of it. Like I explained in the beginning, that when I put up that this thing post for that circulation exercise, I sort of said, okay, I'm never going to remember doing it 10 times a day. So I'm going to do it after every meal, every time I drink water, and every time I go to the washroom. I come out, I do that for a minute. Okay, so usme to 10 times aaram se ho hi jata hai. So you need to, you need to sort of have fun with these healthy habits and feel happy about it and feel gratitude towards it. Okay, there's somebody at least putting its valuable time and guiding us in the right direction. And if we just do these little things, I've often said that simple things are easy to do, simple things are also easy not to do. Okay, now that's an exercise which everybody can do. Try and do that exercise. It is so valuable for your blood circulation that you yourself will start feeling so much better. Okay. Yeah.
like I found during my recent Japanese trip, the Japanese meals which we had, you know, 3 of them, lunches and all, they were so light and they were so full. I'm saying, you know, it was totally different thing all the same, but So- they were so good. We felt our tummies full and it was light also. Is it a surprise that the Japanese live, you know, Yeah. for many years? And today Right. now we are facing the opposite problem because Japan has one of the highest aging population in the world. Correct. Yeah, I agree with you. Yeah. So they are health conscious people. They are health conscious people. They eat a lot of fish is also a lot in the diet, and they go to great lengths to keep their fish fresh. In fact, there is this whole story about how the Japanese fishing trawlers, when they came back and they brought in the catch, the Japanese people could immediately make out that this is, you know, a fish, this is a stale fish caught over a few days. So then the Japanese decided to, you know, put ice, and they could even find that out. So then they finally would carry water tanks and they put the fish in it. Okay. And even then, the Japanese could figure out that the fish were not fresh because they were stacking them up into that water tank, just barely keeping them alive. So then they figured out that the best way to do is that they put a small baby shark in it. So the baby shark moves around and then the fish is active. So then they realize, oh, this is like really fresh fish. Okay, so if that much is an effect on just eating fresh fish and stale fish, okay, can you imagine the kind of stuff that we're eating today? Food that is, I mean, fruits that are grown more than a month before. Okay, apples that are getting polished and waxed and sold. I mean, that day I was just taking a walk, and on the roadside early in the morning, I saw this vendor nicely polishing each of the apple, you know. So, and putting wax on it, and you know, it's like, oh wow, you know, this looks good. So whatever looks good is not necessarily nutritious and healthy. Sorry, I took off a wrong tangent here. Yeah. Even the Indian restaurants in Japan, where we were having lunch and dinners, my God, full of oil just to make it tasty for us visitors, you know. Mm. And we had to eat, no choice. Yeah. Thank you. Thanks. Okay. Thank you, Farooq, for bringing in that insight and especially that chit chat. And we are going to hear more about why health, why now on this Monday session, because on Monday we are going to start the new batch. And you know, the best part about this whole thing is you can be a part of the community. And then you don't have to remember all these things. You can just participate. And once you're a part of the community, you love, you enjoy, and then you take charge of your health, as Manoj rightly said. So next week is going to be very, very exciting because Monday we are going to hear why health, why now? And next Friday is going to be even more exciting because we are going to have a panel discussion and a panelist who have achieved a great success in their health journey are going to be talking about their personal story. Farooq is going to be there, Manoj Rawat is going to be there, Deepika Vora is going to be there, and the house will be open. You can ask any question about their journey, their success tips. So next week is really going to be exciting, and that will also set the right foundation for Diwali because the festive is just around the corner and we can just take charge of our health. And this Diwali, we can really set some nice healthy goals. And next Diwali, we are going to celebrate it. So thank you very much. I'm Raj signing off. Good night.